Hello students, in this video I will describe some chemical reactions and different types of chemical reactions के कौन से टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस होते हैं और वो कौन से टाइप के हैं और उसके बारे में हम डिटेल जानकारी यहाँ पर देखेंगे। फर्स्ट है combination reaction, second decomposition reaction, third one displacement reaction, fourth double displacement reaction, fifth oxidation reduction reaction, and now we will discuss every reaction one by one in detail. Now first one, combination reactions or synthesis. What is a combination reaction? When two or more reactant combine to form a single product is called a combination reactions. इसका मतलब है दो और दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर अगर प्रोडक्ट बनता है, एक प्रोडक्ट मिलता है, तो हम उसे कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कंबाइन हो गया है और कुछ समथिंग इज सिंथेसिस ड्यूरिंग दैट रिएक्शन, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट इट इज अ सिंथेसिस रिएक्शन आल्सो। सम एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर, अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। फर्स्ट दिया है कैल्शियम ऑक्साइड reacts with water to form calcium hydroxide and heat. ये exothermic reaction है because heat is evolved during the reaction. Calcium oxide, that is a quicklime. Calcium oxide ये chemical word है, उसे हम generally बोलते हैं quicklime. Calcium oxide CaO is the molecular formula. It reacts with water, then it forms. When both the things are react, then there is a formation of calcium hydroxide CaOH twice. That is the slake line. ठीक है, and during that reaction if you touch the beaker your palm will feel hot, means heat is evolved during that reaction, so it is an exothermic reaction. ठीक है, अब solution of calcium hydroxide जो है ऊपर में जो फॉर्म हो रहा अबाउट रिएक्शंस में, it is used for white washing. क्लियर? स्लेक लाइम जो यूज होता है वो होता है व्हाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स। व्हाइट वॉशिंग करने के बाद अब एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, तो वो व्हाइट वॉश में हमने जो यूज किया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो रिएक्ट होता है वेरी स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड विच इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर. आफ्टर that calcium hydroxide is converted into the calcium carbonate, shiny white appearance, but it takes some time for formation of calcium carbonate, और कम से कम व्हाइट वॉशिंग होने के बाद दूसरे या तीसरे दिन में आपको शाइनी व्हाइट अपीयरेंस दिखता है, वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक है, अब मार्बल इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय अ फॉर्मूला कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 हियर. तो now next example of combination reaction is burning of coal. ठीक है, carbon which is present in form of coal combine with oxygen to form carbon dioxide. C plus O2 forms CO2, that is a carbon dioxide. It is also the combination reaction. Now third example is reaction between hydrogen and oxygen gas to form a water. H2 plus O2 combine to form a water. 2 molecule of water. For balancing it is written twice H2 plus O2 gives twice H2O. That is also the example of combination reaction. Okay. नाउ सेकेंड टाइप है केमिकल रिएक्शंस का डिकम्पोजिशन रिएक्शन. डिकम्पोज ये वर्ड ही दर्शाता है कि क्या होता होगा इस रिएक्शन में. डिकम्पोज होना यानी टूटना. अगर कोई रिएक्टेंट टूट कर अगर उसके 2 या 3 फॉर्म या मोर देन 2 फॉर्म्स अगर फॉर्म हो रहे हैं तो वो रिएक्शन हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कंसिडर करेंगे. अ रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू फॉर्म अ 2 or more product is known as decomposition reaction, and this reaction is exactly opposite to the combination reaction. क्योंकि combination reactions में होता क्या है, दो reactant combine होकर हमें single product मिलता है. decomposition reactions में क्या होता है, वही single product break down होकर हमें fragments यानी 2 different components मिलते हैं या compounds मिलते हैं, तो वो decomposed हो गया. यानी दोनों reactions क्या है, आपस में एक दूसरे के opposite है. On the basis of the form of energy required, again the decomposition reaction is also are of 3 types. अब हम डिकम्पोज करने के लिए जो फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज करते हैं, यानी तोड़ने के लिए, कंपाउंड्स को ब्रेक डाउन करने के लिए या तोड़ने के लिए जो फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज करते हैं, उस फॉर्म ऑफ एनर्जी के बेसिस पे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स. फर्स्ट है
थर्मल डिकम्पोजिशन। अब ये वर्ड ही दर्शाता है कि क्या होता होगा। क्या होता है? थर्मल यानी हीट। हम हीट को यूज करते हैं, हीट एनर्जी को यूज करते हैं, विच इज ऑल्सो द वन फॉर्म ऑफ एनर्जी फॉर डिकम्पोजिंग द रिएक्टेंट। यहाँ पे वन एग्जाम्पल इज गिवन, कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग डिकम्पोजेस टू गिव calcium oxide, that is a quicklime, CO2 and water, H2O molecule is also formed. Calcium oxide is used in the manufacture of cement. We know this thing. Okay. सेकेंड एग्जाम्पल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का फेरस सल्फेट, विच इज ग्रीन कलर क्रिस्टल। ठीक है, फेरस सल्फेट ग्रीन कलर क्रिस्टल्स को ऑन हीटिंग इट लॉसेस वाटर एंड कलर ऑफ क्रिस्टल इज ऑल्सो चेंजेस। ठीक है, तो FeSO4 है ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट। आफ्टर हीटिंग इट फॉर्म्स Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, SO2 gas is also evolved and SO3 gas is also evolved during the reaction. ठीक है, दिस इज ऑल्सो द डिकम्पोजिशन। क्योंकि देखिए एक रिएक्टेंट हमने लिया है और उसके 3 डिफरेंट कंपाउंड्स मिले हैं। अब एक सॉलिड के फॉर्म में है और 2 गैसेस के फॉर्म में है, लेकिन हमें 3 कंपाउंड्स मिले हैं। तो ये तो ब्रेक डाउन हो गया उस कंपाउंड का। और विच फॉर्म ऑफ एनर्जी वी आर यूजिंग फॉर ब्रेकिंग द रिएक्टेंट, दैट इज अ हीट। ठीक है, दो इट इज अ थर्मल डिकम्पोजिशन। नाउ थर्ड एग्जांपल इज ऑन हीटिंग lead nitrate, it decomposes to give yellow lead monoxide, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस। लेड नाइट्रेट जो कि कलरलेस है, उसे आप हीट करो, डिकम्पोज करो बाय यूजिंग द हीट एनर्जी। तो आफ्टर दैट lead nitrate is also break down into the lead oxide, then NO2 gas, that is a nitrogen dioxide, and oxygen gas is also evolved. Means यहाँ पर भी you can see that one reactant is break down into a 3 different components. So it is also the decomposition reaction. But which form of energy you are using for decomposing the reactant, that is a heat energy. That's why we are saying that it is a thermal decomposition reaction. Next reaction is डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इलेक्ट्रोलाइसिस में होता क्या है, हम क्या यूज करते होंगे, ये वर्ड से पता चलता है कि हम वी आर यूजिंग द इलेक्ट्रिक करंट फॉर दिस डिकम्पोजिशन। तो इलेक्ट्रिक करंट इज ऑल्सो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज यूज टू डिकम्पोज द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है वाटर मॉलिक्यूल का। वाटर मॉलिक्यूल इज ऑल्सो डिकम्पोज्ड by using a electric current. When you pass the electric current in that water, तो एरो के ऊपर में क्या लिखना चाहिए, इलेक्ट्रिक करंट। सो इलेक्ट्रिक करंट, तो आफ्टर पासिंग इलेक्ट्रिक करंट इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म CO2, फॉर्म H2 and O2। ठीक है, तो इट इज अ इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। नाउ हियर अगेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ मोल्टन NaCl। NaCl है, दिस इज द मोल्टन स्टेट। मोल्टन स्टेट यानी आपने मेल्ट किया है। इसमें भी अगर when you pass the electric current through this molten state of NaCl, it is also break down to forms Na and Cl2, twice Na and Cl2. So it is also the electrolysis reaction, because which form of energy you are using, that is the electric current. Now third form of decomposition reaction is photolysis or photochemical reaction, photochemical decomposition। ठीक है, photolysis और photochemical decomposition में which form of energy we are using, sunlight। ठीक है, which is present in the form of photon। So we are using a sunlight here for decomposing the reactant। Now example is given here, silver chloride which is white in color exposed to sunlight। अगर रखते हैं और सनलाइट में, तो क्या होता है, सिल्वर कलर जो सिल्वर क्लोराइड है व्हाइट कलर का, डिकम्पोज होके आपको सिल्वर मेटल विच इज अ ग्रेश कलर और क्लोरीन गैस इज रिमूव इन दैट कंपाउंड। कंटिन्यू अगर सनलाइट में रखते हैं आप सिल्वर क्लोराइड, तो आपको सिर्फ सिल्वर मिलेगा विच इज ग्रे कलर, यानी डिकम्पोज होके, और क्लोरीन गैस जो ग्रीनिश कलर की होती है वो निकल जाएगी। So it is also decomposition reaction and we are using a sunlight, that's why this reaction is also a decomposition reaction by using a photolysis, by using a sunlight। So it is a photolysis or photochemical decomposition we can say। Again one more example of this photochemical decomposition is given, silver bromide solid है, वो उसे भी आप sunlight में रखो, decompose करो, तो it will again form a grey color का silver, and bromide gas is also removed in the sunlight। So it is also the decomposition reaction, but it is a photolysis या फिर photochemical decomposition reaction because okay। Now
फर्स्ट हो गया है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड है डिकम्पोजिशन रिएक्शन which is also classified into three categories, that is the thermal decomposition, then electrolysis also, then photochemical decomposition also. Now these are the three types of decomposition reaction. Now third type of chemical reaction is exothermic and endothermic reactions. Ab depending upon the whether the heat is evolved or absorbed during the reaction is classified into exothermic or endothermic. रिएक्शन होते वक्त रिएक्शन में से रिएक्शन का सिस्टम जो है वो हीट बाहर से ले रहा है अंदर में, यानी सिस्टम सराउंडिंग में से हीट एब्सॉर्ब कर रहा है कि सराउंडिंग में हीट इवॉल्व कर रहा है यानी छोड़ रहा है, उसके बेसिस पे रिएक्शन इज आल्सो क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक. अब हम वन बाय वन देखते हैं. एक्सोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन विच आर अकम्पनीड बाय द रिलीज ऑफ हीट either in the form of heat or light along with the formation of product. अब जिस रिएक्शन में से हीट रिलीज हो रही है ड्यूरिंग द रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन होते वक्त हीट बाहर एटमॉस्फेयर में जा रही है, निकल रही है, तो उस रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं. और ऐसे रिएक्शंस को अगर आप बीकर में वगैरह कर रहे हैं और इफ यू टच दिस बीकर, तुम्हारे हाथ को गर्म लगता है, यानी आप महसूस कर सकते हैं कि हीट निकल रही है और बाहर जा रही है. आप एक कॉमन एग्जांपल डेली लाइफ का देखते हैं, respiration during digestion of food such as rice and potato which contain a carbohydrate are also break down and to form a glucose. जो कार्बोहाइड्रेट है राइस और पोटैटो में वो ब्रेक डाउन होता है ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन प्रोसेस में और फॉर्म क्या होता है, ग्लूकोज ड्यूरिंग डाइजेशन. और ये जो ग्लूकोज है विच ऑल्सो कंबाइन विद oxygen in the cells of the body and provides the energy. अब reaction is also already given here for respiration during the digestion of food, but only one thing is that arrow is not insert, so I will draw one arrow here. That is, this is a carbohydrate which is break down by using oxygen to form a carbon dioxide, CO2 and energy. Next reaction for exothermic reaction is burning of natural gas. That is a combustion reaction. नेचुरल गैस जब बर्न होती है तो क्या मिलता है, CO2, वाटर एंड अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व ड्यूरिंग दैट रिएक्शन. अब नेचुरल गैस का एक एग्जांपल लिया है यहाँ पर मीथेन का. मीथेन बर्न विथ ऑक्सीजन, इट फॉर्म CO2 and two molecules of H2 plus heat. It is exothermic reaction because heat is evolved during the reaction. ठीक है, प्रोडक्ट साइड में हीट आया है. अगेन मोर एग्जांपल इज आल्सो गिवन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन. इट बर्न्स विथ अ वाइट dazzling flame or light. Magnesium ribbon is burned with oxygen, that is a twice Mg plus O2 gives twice MgO plus heat. That is a magnesium oxide, which is a white color ash is formed during that reaction when both the things are combined. But during that reaction, it is a combination, but heat is evolved during the reaction. That's why we are saying that it is a exo. Now next example, decomposition of vegetable matter into compost is an also example of exothermic reaction because decomposition vegetable matter जो भी होते हैं उसका आप डिकम्पोज करो यानी उसे सड़ने दो तो कुछ अमाउंट ऑफ हीट निकलती है जो इवॉल्व होती है एटमॉस्फेयर में. सो दिस इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज इवोल्यूशन ऑफ हीट इज कैरिड आउट हियर ड्यूरिंग दैट रिएक्शन. In this process leads to the evolution of heat. Now endothermic reaction. अब exothermic के हमने देखा, 3 एग्जाम्पल देखे. एक्सोथर्मिक होता है जिस रिएक्शन में से हीट निकलती है या फिर इवॉल्व होती है, रिलीज होती है, हम कह सकते हैं वो सारे रिएक्शंस एक्सोथर्मिक के कैटेगरी में आते हैं. अब एंडोथर्मिक रिएक्शंस, द रिएक्शन विच ऑकर बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ energy either in the form of heat, electricity or light are called endothermic reaction. ठीक है, exothermic endothermic का एग्जांपल दिया है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर when both the things are combined during in photosynthesis they are this reaction is carried out in presence of sunlight. ठीक है, तो इसका मतलब है कि reactant they absorb the sunlight from the atmosphere and after that they form a sugar, that is glucose C6H12O6 in the form of sugar, and oxygen is evolved during photosynthesis, that is a O2 is evolved. So it is an endothermic reaction because heat is absorbed during the reaction or required to carry out to proceed the reaction. All the decomposition reactions require energy in the form of heat, light, and electricity.
फॉर व्हाट? फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट कंपाउंड्स। ठीक है, ये सारी चीजें लगती है, यानी हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, इसमें से कोई भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी लगेगी ताकि रिएक्टेंट ब्रेक हो। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन हम स्पेशली पढ़ रहे हैं। एंडोथर्मिक में हीट इज एब्सॉर्ब्ड। अब वही रिएक्शन यहाँ पे आती है, HgO। HgO is require heat to break down the compounds, that is a mercury oxide, and form a mercury oxygen. Okay, and again one more example, that is a calcium carbonate. Calcium carbonate भी अगर हीट एब्सॉर्ब करता है तो इट ब्रेक डाउन एंड फॉर्म्स कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम दैट इज अ स्लेक लाइन कन्वर्ट होता है आफ्टर एब्सॉर्प्शन ऑफ हीट. That is a not slake lime, that is a calcium carbonate, that is a marble. Absorb heat and forms a calcium oxide, that is a quicklime. Ammonium chloride also require heat for breakdown its compound and form ammonia and HCl gas. Barium hydroxide, when react with ammonium chloride, then there is a formation of barium chloride, ammonia and water. ओके, नाउ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। अब इस रिएक्शन में a reaction in which more reactive element displaces a less reactive element from its compound is called as a displacement reaction, and that one is a single displacement reaction. Displacement reaction is also classified into two categories, single displacement also and double displacement also. Before that we are learning here a single displacement reaction. अब एग्जाम्पल दिया है, जिंक इज बिकम्स मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ठीक है, अगर रिएक्टिविटी सीरीज आप देखते हैं तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर एलिमेंट्स है वो हाईली रिएक्टिव है और नीचे वाले एलिमेंट्स लेस रिएक्टिव है। अब जिंक एंड कॉपर की पोजीशन अगर रिएक्टिविटी सीरीज में आप देखते हैं तो जिंक ऊपर है, दैट इज अ हाईली रिएक्टिव, और कॉपर नीचे के साइड में है तो दैट इज अ लेस रिएक्टिव। तो फिर इस कंडीशंस में जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट्स में से डिस्प्लेस करेगा। यानी जिंक कॉपर अगर लेस रिएक्टिव है जिंक से तो कॉपर रिमूव हो जाएगा और कॉपर की जगह पे मोर रिएक्टिव एलिमेंट एंटर होगा, तो इट फॉर्म्स ए जिंक सल्फेट एंड कॉपर बिकम सेपरेट, दैट इज अ ब्राउन कलर मेटल। नेक्स्ट वन देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। The reaction in which two different ions or group of atom in the reactant molecule are displaced by each other, then that and form a new compound, then that reaction is called as double displacement reaction. इस particular reactions में दो salts लेने हैं, दोनों सॉल्ट्स में कैटायंस एनायंस रहेंगे। अब वो दो कैटायंस, दोनों सॉल्ट्स के कैटायन अगर आपस में एक्सचेंज हो रहे, दैट इज एक्सचेंज ऑफ आयंस आर टेक प्लेस। Different ions or group of atoms in the reactant molecule are displaced by each other and form a new compound, then that reaction is called a double displacement reaction. In most of these reactions, insoluble substance, that is precipitate, is formed. Okay, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, इंसॉल्युबल सब्सटेंस दैट इज अ प्रेसिपिटेट, हम उसे इंसॉल्युबल कहते हैं बिकॉज इट इज फ्लोटिंग इनसाइड द सॉल्यूशन, इनसाइड द टेस्ट ट्यूब, so that one is formed during that reaction. Any reaction that produces a precipitate that called precipitation reaction, और जो reactions में precipitate form हो रहा है उस reactions को हम precipitation reaction कहते हैं। Now one example of displacement reactions are as follows. एक दिया हुआ example है यहाँ पर, बेरियम क्लोराइड solution react with sodium sulfate. क्या होता है, two ions will exchange, that is barium will combine with sulfate ions, it forms a barium sulfate, and sodium ion combined with chloride, so it forms a sodium chloride. In this way, exchange of ions takes place between two different compounds of the molecule reactant, and after exchanging we are getting a new compounds, so that reaction is called a double displacement. Now next example of double decomposition reaction on adding a silver nitrate solution. हम यहाँ पे silver nitrate solution लेंगे और उसमें sodium bromide solution will add aqueous. तो silver nitrate plus sodium bromide, both the ions are exchanged with each other, तो ये Ag हमारे इस Br के साथ combine होके हमें मिलेगा AgBr, और Na जो है वो पहले वाले salt के anions के साथ combine होके we will get sodium nitrate. Okay, so AgBr is the
yellowish color precipitate is formed during the reaction because bromine is also there, and sodium bromide, that is NaBr, and silver nitrate, that is a silver color, AgNO3. ठीक है. ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस. अब हम देखेंगे वन बाय वन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन. ये केमिकल इक्वेशंस का लास्ट टाइप है. अब ऑक्सीडेशन देखिए. First time we will see the oxidation. It is the process in which oxygen is added to a substance. किसी भी substance अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है या फिर ऑक्सीजन उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के साथ ऐड हो रहा है तो we will get ऑक्सीडेशन. या और अदर वे है इसे डिस्क्राइब करने का. द प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन इज रिमूव फ्रॉम अ सब्सटेंस. ये प्रोसेस जिसमें हाइड्रोजन रिमूव होता है वो रिएक्शन भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन कंसिडर होगी. नाउ एग्जांपल्स आर गिवन. Twice Cu plus O2 in presence of heat gives twice CuO. Copper combined with oxygen in presence of heat. क्या मिलता है? Copper oxide. So it is a oxidation reaction because combined with oxygen. Now H2S plus Cl2 gives twice HCl. And hydrogen is removed. Removal of hydrogen from sulfur. So we got here pure sulfur and that hydrogen combined with Cl. So we got hydrogen chloride. So that one is also the oxidation. Removal of hydrogen is also oxidation and combined with oxygen is also oxidation. Okay. Now next one is reduction. Reduction क्या होता है? जो कि exactly opposite process है ऑक्सीडेशन से. ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन is added and hydrogen is removed. तो रिडक्शन में क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन is added and oxygen is removed. Then that process is called as reduction reaction. Now one example is given here. KClO3 पोटेशियम क्लोराइड का एग्जाम्पल दिया है. हीट करने के बाद पोटेशियम क्लोराइड में से ऑक्सीजन इज रिमूव. So that is also called as a reduction reaction. Twice KCl plus thrice O2 we got. Again, next one example is sodium plus hydrogen forms sodium hydride. So combined with hydrogen is also called as a reduction reaction. So first reaction में removal of oxygen and second reaction में addition or combined with hydrogen, that is also called as a reduction reaction. Now again, two more important definitions of this concept, that is oxidation and reduction reactions. वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट. अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये जो किसे कहते हैं? द सब्सटेंस विच कैन ब्रिंग अबाउट द ऑक्सीडेशन ऑफ द सब्सटेंस. ये एजेंट वो चीज है जो दूसरे सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन करवाती है और उससे कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. In the same category, in the same fashion, reducing agent also, the substance which can bring about the reduction of other substances is called a reducing agent. जो substance दूसरे substance का reduction करता है वो substance है reducing agent. Now redox reaction. What is a redox reaction? Those reaction in which oxidation and reduction reaction takes place simultaneously are called redox reactions or oxidation reduction reactions. ठीक है. redox वर्ड हुआ या फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ, बोथ द थिंग्स आर सेम. बट कहते किसे है? एक ही रिएक्शंस में, दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों चीजें एक ही टाइम में साइमल्टेनियसली एक के बाद एक हो रही है, यानी ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो ऐसे रिएक्शंस को हम रेडॉक्स रिएक्शंस कहेंगे. फॉर एग्जांपल द फॉलोइंग रिएक्शंस, कॉपर टू ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन and is being reduced. ठीक है. कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन इज ऑलरेडी प्रेजेंट, सो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा, दैट इज अ रिडक्शन and itself get reduced, that is the Cu only is formed, that is a copper metal, whereas oxygen is added to a hydrogen and being it's oxidized, ठीक है, and forms a water molecule. Next redox reaction एक दी हुई है. Reaction of manganese dioxide MnO2 with aqueous HCl. अब MnO2 react with aqueous HCl, क्या मिल रहा हमें? MnCl2, that is a manganese dichloride plus Cl2 plus water. अब MnO2, that is इसमें से oxygen is removed, so and forms MnCl2. So यहाँ पर हो रहा oxygen removal of oxygen is reduction and HCl में से हमें मिल रहा है
H2O, दैट इज HCl में से हमें ऑक्सीजन जो रिमूव हो रहा है वो कंबाइन हो रहा है हाइड्रोजन के साथ. सो एडिशन और कंबाइन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो द ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ठीक है, तो फर्स्ट वन है रिडक्शन, सेकंड वन है ऑक्सीडेशन. नाउ इन द अबव रिएक्शन HCl इज ऑक्सीडाइज्ड टू Cl2. ठीक है, HCl जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा Cl2 के साथ में, वेयर एज MnO2 इज रिड्यूस्ड टू MnCl2. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन ऑक्सीडेशन स्टेट. आप देख सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, उससे भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस को. अब यहाँ पे जिंक दिया है Zn plus Cu2 plus. We got after reacting of both the things Zn2 plus Cu. जिंक पर कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, इसका मतलब जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है. बट जीरो से वो +2 तक गया, इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट्स गोज ऑन इंक्रीजेस. So that is a oxidation process, and Cl2 is already present in +2 form, but after that, after the reaction, it forms a pure Cu, which is having a zero oxidation state according to rule. So plus state, that is oxidation number जो है वो decreased हो रहा +2 से 0 के तरफ, that is a oxidation state is decreases, so that is a reduction. Now effects of oxidation reactions in everyday life. अब ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हमारे एवरीडे लाइफ में हमारे पीछे होते रहते हैं, हमारे आंखों के सामने होते रहते, बट वी आर नॉट अवेयर कि वेदर दैट थिंग इज हैपेंड इन फ्रंट ऑफ अस. तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ऑक्सीडेशन है, लेकिन हम अगर स्टडी होने के बाद में हम अवेयर हो जाते हैं कि ये ऑक्सीडाइज्ड हो रहा या फिर कोई चीज़ है वो रिड्यूस्ड हो रही. अब देखते हैं उसके इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के हमारे एवरीडे लाइफ पर. Oxidation reactions have a damaging effects of both metal and food. Oxidation reactions डैमेजिंग इफेक्ट फॉर्म करता है मेटल पर भी और फूड पर भी. ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल लीड्स टू द कोरोजन ऑफ मेटल. अगर कोई मेटल ऑक्सीडाइज्ड हो रहा, इसका मतलब वो कोरोड हो रहा, उसका परसेंटेज कम हो रहा, उसका अमाउंट कम हो रहा, दैट इज ऑक्सीडेशन. और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड रिजल्ट्स इन रैंसिडिटी. अगर कोई फूड ऑक्सीडाइज्ड हो गया या फिर ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन हो गया तो वो रैंसिड हो जाता है और एंड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रैंसिडिटी. अब ये रैंसिडिटी या फिर कोरोजन क्या है हम देखते हैं. कोरोजन, द फिनोमेना ड्यू टू विच ओपन surface of metal are slowly eaten away by the reaction of air, water and the chemical present in the atmosphere is called corrosion. ठीक है, अब कंपाउंड जो ओपन सरफेस में हम मेटल्स रखते हैं, वो स्लोली इटन अवे बाय द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन. वो स्लोली रिएक्ट हो रहा मेटल ऑक्सीजन के साथ, बट व्हेन इट इज रिएक्ट ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल या फिर वाटर मॉइस्चर अवेलेबल रहना बहुत ज़रूरी है. तो मेटल ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट होके और कंबाइंड फॉर्म केमिकल्स जो है एटमॉस्फेयर में उसके साथ रिएक्ट होके कोरोड होते हैं. तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एन कोरोजन. ठीक है, उसका अपना कलर चेंज हो जाता है. और आयन के बारे में तो हम देखते हैं कि आयन कलर चेंज नहीं करता, आयन रस्ट फॉर्म करता है, दैट इज द रस्टिंग ऑफ आयन. तो आयन आर्टिकल्स आर शाइनी व्हेन न्यू. जब नया होता है तो शाइनी होता है, बट गेट कोटेड विथ अ रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम इन द ओपन एटमॉस्फेयर. लेकिन अगर आयन के आर्टिकल्स आप ओपन एटमॉस्फेयर में रखते हैं कुछ टाइम तक, तो फिर वो ऑक्सीजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर दे आर कंबाइंड एंड दे फॉर्म अ रस्ट. एंड दैट प्रोसेस ऑफ कोरोजन ऑफ आयन, इस ये जो प्रोसेस है आयन की कोरोजन की, उसे हम जनरली रस्टिंग कहते हैं. द रस्टिंग ऑफ आयन इज अ रेडॉक्स रिएक्शन. रस्ट फॉर्म होना यानी आयन का जो रेडिश पाउडर फॉर्म होता है, दैट इज उसे हम कहेंगे रस्ट. और ये रस्टिंग ऑफ आयन एक क्या होती है, रेडॉक्स रिएक्शन है. यानी ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर या फिर ग्रीन कोटिंग ऑफ ऑन कॉपर इज ऑल्सो अनदर एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन. अदर मेटल्स कोरोड होते हैं और रस्टिंग होना हम सिर्फ आयन के लिए यूज करते हैं, बिकॉज आयन्स आर फॉर्मिंग इट्स ओन रेडिश पाउडर, दैट इज कॉल्ड इन द रस्ट Fe2O3. और अदर मेटल दे आर नॉट फॉर्मिंग अ blackish metal, but they are corrode, means they are coloring or covering on that particular metal or surface becomes change. Now effects of corrosion. Corrosion की effects क्या है? Corrosion is a
वेस्टफुल प्रोसेस इन मोस्ट ऑफ द केसेस। कोरोजन कभी भी अच्छा नहीं होता, वेस्टफुल प्रोसेस है, वेस्ट हो जाती है। एवरी ईयर टन्स ऑफ वेरियस मेटल स्पेशली आयरन गेट वेस्टेड। हर साल हमारा बहुत टन ऑफ आयरन जो है वेस्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ रस्टिंग। इट कॉजेज डैमेज टू कार बॉडीज, ब्रिजेस, आयरन रेलिंग एंड शिप्स ऑल्सो एंड ऑल द ऑब्जेक्ट्स विच आर मेड अप ऑफ मेटल। जो आयरन से बने होते हैं वो तो आयरन रस्ट फॉर्म करके वो मेटल्स का ओरिजिनल अमाउंट जो है वो कम हो जाता है और रेडिश पाउडर उस आर्टिकल के नीचे गिरा हुआ रहता है और धीरे 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 वो मेटल का पूरा परसेंटेज खत्म होकर व्हाइट कलर के रस्ट पाउडर में कन्वर्ट होता है। तो क्या होता है, हमारा आयरन का जो आर्टिकल है वो टूट जाता है, ब्रेक डाउन होगा, डैमेज होगा। तो आयरन से बने हुए सारे जो आर्टिकल है, कार बॉडीज है, ब्रिजेस है, आयरन रेलिंग है, शिप्स है, ये सारी चीजें आयरन से बनी हुई रहती। तो ऑल दीज आर रिएक्ट विथ मॉइस्चर एंड एयर एंड becomes rust, and that's why they are wasted hundreds of many tons of ions are wasted in every year. This is a serious problem as enormous amount of money is spent every year to replace a damaged iron due to corrosion. अब ये जो डैमेज हो गया आयन उसको रिप्लेस करने के लिए, रिकवर करने के लिए हमें बहुत सारे पैसे स्पेंड करने पड़ते हैं। सो इट इज अ सीरियस प्रॉब्लम और ये तो स्पेशलिटी है आयरन की कि वो रिएक्ट होगा। हेंस इट इज क्वाइट नेसेसरी टू प्रिवेंट कोरोजन। अब ऐसे कंडीशन में हमें प्रिवेंट करना है कोरोजन को, कोरोड ना हो, कोई भी मेटल्स कोरोड ना हो। और उसके प्रिवेंशन मेथड्स क्या क्या होते हैं हम देखते हैं। प्रिवेंशन में क्या टेक्नोलॉजीज आती है, पेंटिंग करो, गैल्वेनाइजिंग करो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करो और सम ऑफ द मेथड्स टू प्रिवेंट कोरोजन। ये सारे मेथड्स है जिससे हम कोरोजन, मेटल कोरोड ना हो या फिर मेटल का कोरोजन प्रिवेंट कर सकते हैं या अवॉइड कर सकते हैं। It is rancidity. It is the process of slow oxidation of oil and fat present in food material, due to which they become rancid, resulting in the damage of smell and taste in them. ठीक है, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रेसिडिटी। ये स्लो प्रोसेस है जिसमें ऑयल और फैट जो फूड में प्रेजेंट होता है वो रिएक्शन विद द ऑक्सीजन दे बिकम कंबाइन होता है एंड दे फॉर्म अ फाउल स्मेल of that food material and taste also. So that process is called as rancidity. Some of the method to prevent rancidity are as follows. अब ये food material या फिर फूड जो चीज है, खाने के पदार्थ हमारे रैंसिड नहीं होने चाहिए, उसके लिए हम कुछ प्रिकॉशंस ले सकते हैं। सम मेथड्स आर गिवन फॉलोज। नाउ कीपिंग फूड मटेरियल इन एयर टाइट कंटेनर। फर्स्ट टेक्निक बताया है कि फूड मटेरियल को एयर टाइट कंटेनर्स के साथ में रखो और ताकि वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आए और फूड में जो ऑयल और फैट है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट ना हो। दैट इज द फर्स्ट मेथड है डेली लाइफ की। सेकंड है रेफ्रिजरेशन ऑफ कुक फूड एट लो टेम्परेचर्स। बना हुआ पका हुआ अनाज या फिर खाना जो रहता है आप फ्रीजर में रखो, रेफ्रिजरेटर में रखो एट लो टेम्परेचर पर ताकि वो स्पॉइल ना हो। नाउ थर्ड वन है पैकिंग ऑफ फूड मटेरियल इनटू पोटैटो वेपर्स। ठीक है, फूड मटेरियल, फूड आइटम जो है आपको उसको वेपर्स में कन्वर्ट करना है टू फॉर्मिंग द potato vapors and in packets containing a nitrogen gas instead of air। और उस पैकेट में हम एयर की जगह पे नाइट्रोजन गैस फिल करेंगे ताकि वो पैकेट के अंदर में जो पोटैटो वेपर्स है वो रैंसिड ना हो। थर्ड वन बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स आप ऐड कर सकते हैं, सब्सटेंसेस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल। ठीक है, जिस सब्सटेंस में आपको आप एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड कर सकते हैं तो वो रैंसिड नहीं होगा। दैट इज ऑल्सो वन प्रिकॉशनरी मेथड स्पेशली टू अवॉइड द रैंसिडिटी। नाउ my topic first chapter is completely over here. Now I request to all the students those are watching my part 1, part 2 and part 3 video, please like it, subscribe it, and those needed people please share my video and subscribe my channel. Thank you.